the generation of the FM signal. We have generation of FM is the next topic. We have two methods to generate the FM signal and we can apply either of the two. इन दोनों में से कोई भी एक मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं to generate the FM signal in the laboratory. So the first method is known as the direct method, which is used to generate the wideband FM signal. And the another method, दूसरा method जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड. तो एक डायरेक्ट होगा तो दूसरा इनडायरेक्ट स्वाभाविक है, होना चाहिए. इनडायरेक्ट मेथड का जो दूसरा नाम है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. सो इनडायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. So these are the two methods by which we can generate the FM signal. जो FM signal है वो basically किस तरीके से जनरेट किया जाता है? वो जनरेट किया जाता है, FM का मतलब होता है frequency modulation. इसका मतलब होता है we are going to have the variations in the frequency with respect to the variations in the amplitude of the message signal voltage. So we are taking the input as the message signal voltage, and that input is going to change the frequency of the carrier signal. तो frequency variations को produce किया जाता है with the help of the message signal or voltage variation. So it actually is a voltage to frequency conversion. Frequency modulation is actually a voltage to frequency conversion. There are the variations in the voltage, and that variations will be taken at the output side in the frequency variations form. So this process is known as the frequency modulation process. Frequency modulation process means voltage to frequency conversion, right? इस प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है? तो उसके लिए हमारे पास एक उपकरण की जरूरत होती है, एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसका नाम होता है VCO. VCO. VCO का मतलब है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. आपके पास जो सब्जेक्ट है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें आप लोग ऑसिलेटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं. तो ऑसिलेटर जो होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना. आउटपुट साइड पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, ऑसिलेटर के आउटपुट पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है. सो ऑसिलेटर इज बेसिकली अ डिवाइस which will generate and produce the frequency at its output. Voltage controlled oscillator, that means that oscillator will be controlled by the voltage. Hence the name suggests it is known as voltage controlled oscillator. किसके वोल्टेज से कंट्रोल किया जाएगा? तो इनपुट पर क्या दिया जा रहा है? इनपुट पर दिया जा रहा है मैसेज सिग्नल MT. So this VCO will be taking the input and the input will be the message signal MT. उस MT का जो वोल्टेज होने वाला है उसमें वेरिएशंस की मदद से हम लोगों को आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी जो मिलने वाली है, ऑसिलेटर का आउटपुट हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशंस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशंस ऑफ द मैसेज सिग्नल वोल्टेज. सो द इनपुट विल बी MT और VCO का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म S of FMT. So this is how we are going to generate a frequency modulated signal in the laboratory, right? VCO क्या लिखा हुआ है? Let us read it. VCO is used for the generation of the FM. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो होता है इसको यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए in the laboratory, right? So this is about the voltage controlled oscillator. ऑसिलेटर के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं ऑसिलेटर के बारे में. ऑसिलेटर होते कितने टाइप के हैं? सो बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑसिलेटर. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर. Types of oscillator, we have two types of oscillator. Harmonic oscillator, which is also known as sinusoidal oscillator.
साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। दूसरे टाइप के जो ऑसिलेटर होते हैं उनको बोलते हैं नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर। So basically we can classify the oscillator in two parts, harmonic oscillator as well as non-harmonic oscillators. Harmonic oscillators जो होते हैं वो सिंगल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर भी कहलाते हैं। कितने टाइप के होते हैं? सी वी हैव RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। In harmonic oscillator we have RC phase shift oscillator which will generate the audio frequencies. That means the oscillations will be very low frequency oscillations. Audio frequency oscillations are generally the low frequency oscillations. So with the help of the RC phase shift oscillator, we are going to generate a sinusoidal waveform, that means single frequency waveform, and that frequency will be very low. If we need to generate high frequency oscillations, we have different types of oscillators. Like we have Colpit oscillator. Colpit oscillator will generate high frequency oscillations. That means radio frequency oscillations. Radio frequency means high frequency. Another type of oscillator to generate the high frequency will be the Hartley oscillator. So Hartley oscillator is another type of oscillator which will generate the frequency oscillations in the high frequency range. And then last में बात की जाती है वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में, जो एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है. सो दीज are basically the harmonic oscillator or sinusoidal oscillator which will generate the single frequency oscillations. Non-harmonic oscillators जो होते हैं they will generate the multiple frequency oscillations. तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर के आउटपुट पर आपको फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स दिखाई देते हैं, मल्टीपल हार्मोनिक्स दिखाई देते हैं. तो दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नॉन हार्मोनिक और नॉन साइनोसॉइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के नाम से. और इसमें जो ऑसिलेटर होता है वो होता है बेसिकली स्क्वायर वेव ऑसिलेटर. स्क्वायर वेव ऑसिलेटर का नाम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी होता है. सो एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वी कैन जनरेट अ वेव फॉर्म विच विल बी स्क्वायर इन नेचर. और स्क्वायर वेव फॉर्म के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने फोरियर सीरीज के बारे में बात किया था. स्क्वायर वेव फॉर्म, ऐसी वेव फॉर्म जो कि नॉन साइनोसॉइडल है, उसको फोरियर सीरीज की मदद से जब आप साइनोसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स दिखाई देते हैं. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव द मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. So when you are going to generate the multiple frequencies, that oscillator is known as non-sinusoidal oscillator. एक एग्जांपल आपके सामने है जिसका नाम है स्क्वायर वेव ऑसिलेटर. दूसरा ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर is also a non-sinusoidal oscillator, right? So these are basically the non-sinusoidal oscillator. We have another example, like we have a sawtooth oscillator जो सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए काम आता है. इसका नाम होता है बूटस्ट्रैप स्वीप. ये भी एक नाम है इस ऑसिलेटर का. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है. बेसिकली हम लोग जो है वो इनमें से किसी एक ऑसिलेटर को, मेजरली हार्टले ऑसिलेटर को यूज करने वाले हैं टू जनरेट आवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. सो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो बना होगा हार्टले ऑसिलेटर से. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस हार्टले ऑसिलेटर कंसेप्ट टू जनरेट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. चलिए, हार्टले ऑसिलेटर का बेसिक डायग्राम क्या होता है. हार्टले ऑसिलेटर या किसी भी ऑसिलेटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है जिसका नाम होता है टैंक सर्किट. हर ऑसिलेटर का टैंक सर्किट दूसरे ऑसिलेटर के टैंक सर्किट से थोड़ा सा अलग होता है. हार्टले ऑसिलेटर का जो टैंक सर्किट है इसको आप देख सकते हैं. इस टैंक सर्किट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सो वी हैव टू इंडक्टर्स नेम एज L1 एंड L2 एंड वी हैव वन कैपेसिटर नेम एज C. ये एक टैंक सर्किट का डायग्राम है. हार्टले ऑसिलेटर से अगर हम स्विच करें लेट्स से कॉल्पिट ऑसिलेटर पर, तो टैंक सर्किट थोड़ा सा अलग होगा, जहां पर दो कैपेसिटर होंगे और एक इंडक्टर होगा.
क्लैप ऑसिलेटर पर नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ इंडक्टर्स अलग तरीके से होते हैं. सो हर ऑसिलेटर का एक इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, वो हर ऑसिलेटर में पाया जाता है और उस सर्किट को बोलते हैं टैंक सर्किट. तो टैंक सर्किट हर ऑसिलेटर के अंदर पाया जाएगा, जिसका काम होता है फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना. एक्चुअली एल और सी जो होते हैं, ये होते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, और जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स किसी एक सर्किट के अंदर पाए जाते हैं, उतने ही ऑर्डर की इक्वेशंस क्रिएट होती हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हार्मोनिक्स मतलब साइनोसॉइड्स को क्रिएट नहीं कर सकते. राइट, 1/s+1 अगर आप इसको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से टाइम डोमेन में लेके जाएंगे, तो आपको जो टाइम डोमेन में फंक्शन मिलने वाला है वो होने वाला है, क्या होने वाला है, 1/s+1 से एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ st. That means exponential minus of 2πfct. So this is an exponential decay function. जब तक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है आपके पास ऑसिलेशंस नहीं आने वाले हैं. ऑसिलेशंस कब से आना स्टार्ट होंगे, 1/s²+1. फूरियर सीरीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको अच्छे से याद है, 1/s+1 टाइम डोमेन में जब आप इसको लेके जाएंगे, दिस विल बी अ साइनसॉइडल फंक्शन. राइट, साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज व्हाट, 1/s²+1, और कॉस ऑफ टी का s/s²+1. साइन ऑफ at जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलता है a/s² + a², और कॉस ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलता है s/s² + a². अब यहां पर आपको ऑसिलेशंस मिलने वाले हैं, राइट, बिकॉज टाइम डोमेन में साइन और कॉस आपको दिखाई देने वाला है. अब यहां पर आपको ऑसिलेशंस मिलेंगे क्योंकि टाइम डोमेन फंक्शन जो है वो साइनोसॉइडल फंक्शन हो चुका है. साइन टी, कॉस टी, इस तरह के टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो जब तक आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस नहीं है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तब तक टाइम डोमेन में ऑसिलेशंस आपको नहीं मिलने वाले. सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को क्रिएट करने के लिए यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स in the tank circuit. So 2 energy storing elements must be, one energy storing element is capacitor, another is inductor. इसीलिए हम कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से एक टैंक सर्किट को क्रिएट करते हैं, जिसमें एटलीस्ट सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया जा सके. और जब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगी, टाइम डोमेन में आपको ऑसिलेशंस दिखाई देंगे. ऑसिलेशंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी. राइट, सो दिस इज what the concept is about the tank circuit. हार्टले ऑसिलेटर के बारे में बात करें तो आपको जो टैंक सर्किट है, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. इंडक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है, L1 L2, एक कैपेसिटर होता है C, और हार्टले ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है FL, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द हार्टले ऑसिलेटर is 1/2π square root of L1 plus L2 into C, 1/2π square root of LC. ये फ्रीक्वेंसी होती है जो कि होती है हर्ट्ज में. आप यूनिट चेक कर सकते हैं, है ना. 1/√of LC यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो आप लीनियर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, यू विल हैव टू डिवाइड विद द 2π. सो FL विल बी, जो फॉर्मूला है, दैट विल बी FL विल बी इक्वल्स टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ L1 plus L2 into C. दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ हार्टले ऑसिलेटर सर्किट. करेक्ट. अच्छा, इस ऑसिलेटर में एक छोटा सा करेक्शन किया जाता है, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है. और वो मॉडिफिकेशन क्या होता है, वो मॉडिफिकेशन होता है कि इसके साथ एक वेरिकैप या वेरेक्टर डायोड को ऐड किया जाता है. वेरेक्टर डायोड, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर की क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा था. वेरिकैप या वेरेक्टर डायोड, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और इसको किस तरीके से ऐड किया जाता है हार्टले ऑसिलेटर के अंदर, ये भी देखने की कोशिश करते हैं. वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिकैप ये नाम होता है. ये एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है और इसका दूसरा नाम एक वेरेक्टर डायोड भी है. सो दिस इज द वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर.
वेरिकैप, दिस इज बेसिकली अ डायोड, वैरेक्टर डायोड। इसका एक कैपेसिटेंस होता है और वो कैपेसिटेंस होता है सी डैश, और सी डैश जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है उसके फॉर्मूले में किस तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस करता है, दैट वी कैन सी इन दिस फॉर्मूला। Fi equals to 1 by 2 pi square root of L1 plus L2 into C plus C dash, right? L1 plus L2, inductor connected in series will be added, hence it is L1 plus L2. C plus C dash, capacitor connected in parallel will be added, hence this is C plus C dash. वैरेक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है सी डैश, इसकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लीशन विड्थ ऑफ द जंक्शन or depletion width of the diode. So C dash is inversely proportional to the depletion width 1 by W, and W is the depletion width, right? So as the depletion width increases, the capacitance of the varactor diode varicap will be decreased, and as the depletion width decreases, capacitance increases since it is inversely proportional. You got it? यहां पर जो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस है उसको आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में यूज किया गया। इसका मतलब व्हेन दिस कैपेसिटेंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड C dash changes, the instantaneous frequency changes. This instantaneous frequency will be changed with respect to the changes observed in the capacitance of the varactor diode. और वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय द मैसेज सिग्नल. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ मैसेज सिग्नल ओवर द वैरेक्टर डायोड, और उस वैरेक्टर डायोड पर जब हम उस मैसेज सिग्नल को अप्लाई करते हैं, देन दैट मैसेज इज गोइंग टू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड. सो observe this, we are going to apply a message signal MT over the varactor diode. The changes in the voltage of the message signal will going to change the capacitance of the varactor diode. The capacitance then going to change the instantaneous frequency of the Hartley oscillator. So actually MT is going to change the frequency of the Hartley oscillator, right? The voltage variations of the message signal is going to change the frequency variations, is going to produce the frequency variations at the output of the Hartley oscillator. You please recall the concept of a diode when the diode is in reverse bias. Observe this, when the diode is in reverse bias, याद रखें, as we increase the reverse bias voltage, the depletion width increases, right? As we keep on increasing the reverse bias voltage, the depletion width of the diode keep on increases. डिप्लीशन विड्थ जो होती है डायोड की वो बढ़ती जाती है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करती है? वो चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज. जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को कम करते जाते हैं, डिप्लीशन विड्थ जो होती है डायोड की वो कम होती जाती है, राइट? को डायोड को फॉरवर्ड बायस करने से जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो बहुत छोटी हो जाती है. सो डिप्लीशन विड्थ की जो वैल्यू है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट्स जंक्शन. तो जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, डिप्लीशन विड्थ में चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे. मैसेज सिग्नल वोल्टेज वेरिएशंस will actually enhance or produce the variations in the depletion width of the varactor diode,
The changes in the depletion width is going to change the capacitance of the varicap or the varactor diode, and the capacitance is going to change the instantaneous frequency of the Hartley oscillator. So this is how we are actually going to generate the wideband FM signal with the help of a direct method, right? Observe this. Let's say we have a message signal, and this message signal amplitude is varying with respect to time. एक मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल टाइप का दिखाई दे रहा है, so this is actually changing its amplitude with respect to time. See, Fi is actually equals to Fc plus Kfmt. This is the instantaneous frequency of the FM signal. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, और ये होता है Fi equals to Fc plus Kfmt, right? That means when there is a change in the amplitude of the message signal, there should be the change in the instantaneous frequency of the output waveform. So this is the modulated waveform expression in the time domain, where amplitude is same, but you can observe the changes in the instantaneous frequency, right? So as the time progress, you can see there are different frequencies at the different time, right? Because of this formula. This formula says when there is a change in the message signal amplitude or message signal voltage variations will actually produce the changes in the frequency, instantaneous frequency of the FM signal, right? So we can observe two cases. Case one, when the message signal is positive. जब मैसेज सिग्नल की वैल्यू पॉजिटिव है और ये आपने अप्लाई किया हुआ है किस पे, वैरेक्टर डायोड पे, तो ऐसा होने पर क्या होने वाला है, रिवर्स बायस की वैल्यू इंक्रीज करेगी. जब डायोड के रिवर्स बायस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब डायोड के रिवर्स बायस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैंने बताया था रिवर्स बायस वोल्टेज when increased across a diode, the depletion width increases. That means depletion width will be increased of a varactor diode. और depletion width जो होता है वो capacitance के inversely proportional होता है. That means if the depletion width increases, the capacitance decreases. And when the capacitance decreases, the instantaneous frequency increases. So what we are applying a message signal, positive polarity, and that will be applied at the input of the VCO, voltage control oscillator के input पर अप्लाई किया जाएगा. जो आउटपुट पर ऑब्जर्व किया जाएगा वो ऑब्जर्व किया जाएगा increased value of frequency. So as we keep on increasing the message signal amplitude, the voltage variations will be observed in the frequency form at the output of the voltage control oscillator. Right? So this is the case one where we are observing and applying the message signal in the reverse bias mode. Reverse bias means इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज का बैटरी का, और इस डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी को अप्लाई किया जाता है. दिस इज जनरली नोन एज द रिवर्स बायस. Case 2, when the message signal is negative. So when the message signal is negative, positive polarity की जगह negative और negative की जगह positive polarity आएगी. That means in this case we are actually applying a forward bias diode. So forward bias diode में when the forward bias voltage increases, the depletion width decreases. And when the depletion width decreases, capacitance is inversely proportional to the depletion width, hence capacitance increases. And when the capacitance increases, the instantaneous frequency decreases. Why? Because instantaneous frequency is inversely proportional to the capacitance of the varactor diode. So as we decrease the value of the message signal, the frequency decreases.
तो मैसेज सिग्नल के वोल्टेज में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उन वेरिएशंस को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आउटपुट पर वीसीओ के, और वो आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड ऑफ द जनरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को इस तरीके से जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ VCO, voltage control oscillator, right? Next concept, which is the indirect method or Armstrong method of the frequency generation. So let us talk about the indirect method or the wideband FM, indirect method or the Armstrong method to generate the wideband FM signal. Now let's talk about this. Okay, so this method is used to generate the wideband FM signal indirectly from the narrowband FM signal. That means we are taking narrowband FM signal and then इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की मदद से इस narrowband FM से wideband FM में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, right? So this is the simple method where we can take the narrowband FM signal first, and then with this narrowband FM we are going to generate the wideband FM signal. See the block diagram. In this we have a message signal MT, we have a carrier signal CT, and these two are the inputs to a narrowband FM modulator. इस narrowband FM modulator का जो output आएगा वो आएगा S of t, which is the modulated waveform, और ये modulated waveform जो है वो है narrowband FM signal की waveform, right? This narrowband FM waveform now will be applied to a frequency multiplier. Frequency multiplier will multiply the frequency n times. तो जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी n टाइम्स मल्टीप्लाई होके हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो एक्चुअली FC will be converted in NFC once we multiply it with the frequency multiplier coefficient n, and then we are going to have the wideband FM signal S of t, right? So this is how we are going to generate the wideband FM signal from the narrowband FM signal in the indirect method or Armstrong method. This wideband FM signal is generally applied in the mixer to get the carrier frequency FC back again, right? Frequency multiplier क्या होता है? Frequency multiplier is basically a square law device. ये सवाल आपके जहन में होगा कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऐसी नई चीज क्या है. तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या है जी? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है विच इज एक्चुअली फॉलोड बाय द प्रॉपर बैंड पास फिल्टर. स्क्वायर लॉ डिवाइस को बैंड पास फिल्टर की मदद से प्रोसेस कर देते हैं, और ऐसा करने पर आप किसी भी सिग्नल को आपके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं. कॉस ऑफ थीटा को मैं फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, कॉस ऑफ 2 थीटा में जनरेट करना चाहता हूं. दैट मींस माय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 2. तो इस प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं? कॉस ऑफ थीटा को हम स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करेंगे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे. तो कॉस ऑफ थीटा का जो स्क्वायर होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को आप मैथमेटिकली रीअरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2. डीसी कंपोनेंट को कैपेसिटर की मदद से आप फिल्टर कर देंगे, हट जाएगा, तो आपके पास जो आउटपुट बचने वाला है वो बचने वाला है cos of 2 theta. So actually with the help of a squared circuit you convert cos of theta into cos of 2 theta. Here the frequency is multiplied with the multiplication factor of 2. So this is a simple process. This is how we can design a frequency multiplier. अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करना है तो cos of 2 थीटा को फिर स्क्वायर सर्किट से निकाल दीजिए, तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज को आसानी से जनरेट कर पाएंगे. अगर आपको मल्टीप्लाई करना था
3 से, कोफिशिएंट फैक्टर 3 चाहिए था, तो cos ऑफ क्यूब कर दीजिए आप, उसका cos ऑफ 3 थीटा आ जाएगा। क्यूब करेंगे और उसके बाद फिर उसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो सारे नॉइस कंपोनेंट जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। यू विल गेट cos ऑफ 3 थीटा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। कैसा होता है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। वी हैव अ स्क्वायर लॉ डिवाइस, and in that square law device we are applying input voltage VIT. This is the input voltage that we are going to apply in the square law device. Output of the square law device will be A1 VT plus A2 V square of t plus A3 V cube of t, V cube of t, right, plus A4 V times V power 4 V पावर 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आपको मिल सकती हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डिवाइस में स्क्वायरिंग डिवाइस को कंसिडर किया है, वेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर n इक्वल्स टू 2। ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था। cos ऑफ 2 पाई f1t दैट मीन्स cos ऑफ थीटा। इसको जब आप स्क्वायरिंग डिवाइस में अप्लाई करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा cos स्क्वायर ऑफ 2 पाई f1t। सो v स्क्वायर ऑफ t विल बी cos स्क्वायर ऑफ 2 पाई f1t and cos स्क्वायर ऑफ थीटा can be written as 1 plus cos of 2 theta divided by 2. So this is 1 plus cos of 4 pi f1t divided by 2. और डीसी कंपोनेंट जो है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैपेसिटर की मदद से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द फ्रीक्वेंसी विच इज 2 times द इनपुट फ्रीक्वेंसी f1. So this is how we are actually generating the frequency multiplication of frequencies. So we are multiplying the frequency with the multiplication factor. So this is the frequency multiplier, right? Cos of theta applied in the frequency multiplier will generate cos of n theta, where n is the multiplication constant, right? Okay, let us now switch back to the concept where we need to generate the wideband FM signal from the narrowband FM signal. So let us recall the mathematical expression of the narrowband FM signal. S of t of narrowband FM signal क्या था? It was S of t for the narrowband FM was AC cos of 2 pi fct plus beta sine of 2 pi fmt. Here, since it is a narrowband FM, hence beta must be less than or equals to 1, right? And when this narrowband FM signal is applied to a frequency multiplier, the output of the frequency multiplier will be a wideband FM signal. So this is S of t, or better to say it, S of wideband FMT equals to AC cos of 2 pi. हाँ जी, इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ है n का, चेक करें। cos of थीटा इनपुट है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का, तो आउटपुट आएगा cos of n थीटा। तो n का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ऑब्जर्व दिस, cos of 2 pi n into fct plus n times of beta cos of 2 pi fmt, करेक्ट? यहां पर जो n की वैल्यू है, इट शुड बी टेकन एज n बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू मेक अ वाइडबैंड एफएम सिग्नल, और वाइडबैंड एफएम सिग्नल के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आने वाला है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अब आने वाला है n बीटा, राइट? सो s of t और s of wideband fmt will now be written as ac cos of 2 pi n fct plus n beta sine 2 pi fmt, right? For example, if beta is 0.4 in narrowband FM case, then n should be taken as at least 3 to make n beta greater than 1. 0.4 into 3 is 1.2, which is greater than 1. तो वाइडबैंड एफएम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है ये इस तरीके से। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है वो क्या है? वो ये है
कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के पहले और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के बाद जो चेंजेस आए हैं वो क्या क्या है. ऑब्जर्व द चेंज 1. एफसी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होने के बाद कन्वर्ट हो गया है एन टाइम्स ऑफ एफसी में. बीटा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होने के बाद कन्वर्ट हो गया है एन बीटा में. दैट मीन्स बीटा इज ऑल्सो एन टाइम्स. एफएम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होने के बाद भी एफएम ही बना हुआ है. इसका मतलब मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जब आप मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म नैरो बैंड एफएम की वेवफॉर्म को पास करते हैं तो मैसेज सिग्नल के वेरिएशंस फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे. एफएम विल रिमेन सेम, राइट. सो दीज आर द चेंजेस दैट यू कैन ऑब्जर्व बिफोर एंड आफ्टर द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर. Frequency multiplier input is FC. The frequency multiplier output is n times of FC. So FC will be multiplied with the multiplication factor n. Beta will become n beta. FM will remain same. There is no multiplication of the multiplication factor in the message signal frequency. But you can observe the changes in the frequency deviation. Maximum frequency deviation del f will be multiplied with n times of del f. Why? Because beta is defined like this only. Beta is del f over fm. Now when fm is constant, beta changes and increased n times, del f को increase होना पड़ेगा n times से, right? So these are the changes that you can observe before and after the frequency multiplication or frequency multiplier. The question is given as an FM signal having the maximum frequency deviation, that means del f, of 90 kilohertz with the message frequency component of 5 kilohertz, मतलब FM की वैल्यू दी हुई है, is given to a system specified by yt equals to x square of t. ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को फॉलो करेगा. इनपुट और आउटपुट yt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी. क्वेश्चन पूछा गया फाइंड बैंडविड्थ एंड फाइंड बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल. एफएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो क्या होने वाली है. जो चीज दी गई है वो ये दी गई है कि आपको एफएम की वैल्यू दी हुई है और एफएम की वैल्यू है 5 किलोहर्ट्ज की. मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज 5 किलोहर्ट्ज. क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन का मतलब डेल एफ की वैल्यू दी हुई है विच इज 90 किलोहर्ट्ज. तो डेल एफ और एफ एम ये दोनों किस पर अप्लाई किए जा रहे हैं. वाई टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी. इसका मतलब इस इनपुट को एक्स ऑफ टी को स्क्वायर सर्किट से गुजारा जाएगा और उसके बाद एक आउटपुट आएगा वाई टी. तो आपने स्क्वायर सर्किट से गुजारा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से गुजारा जहां पर एन की वैल्यू 2 है. ऐसा करने पर जो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे वो किए जाएंगे सिर्फ डेल एफ के अंदर, क्योंकि एफएम को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करने के बाद भी आउटपुट में एफएम चेंज नहीं होता है. तो डेल एफ की वैल्यू एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल प्रोड्यूस 180. एफएम इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल प्रोड्यूस 5, है ना. ऐसा नहीं बोलना 5 को जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर n इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. नो, एफएम विल रिमेन सेम, राइट. और बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपको पता है. बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. सो बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. डेल एफ प्लस एफएम को आप कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 370 किलोहर्ट्ज. तो दिस इज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे समझ में आया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का इस क्लास में. और वो ये था कि आप जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की मदद से किसी भी एक सिग्नल को, नैरो बैंड एफएम सिग्नल को वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट करते हैं तो एफसी एन टाइम्स कन्वर्ट हो जाती है. एन टाइम्स ऑफ एफसी आउटपुट पर मिलता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के. बैंडविड्थ जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बीटा, दैट विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद एन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड आउटपुट विल बी एन बीटा. फ्रीक्वेंसी message signal frequency FM will remain same. Frequency deviation will be multiplied with the frequency
multiplier factor n. So the wideband FM expression you can observe after the frequency multiplier will be AC cos of 2 pi nfc t plus n beta sin 2 pi fmt. ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के आउटपुट पर. एनएफसी जो है ये फ्रीक्वेंसी को हम वापस सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी पर लाने के लिए जिसकी मदद लेते हैं वो सर्किट का नाम होता है मिक्सर. मिक्सर की मदद से आप जो सेंटर फ्रीक्वेंसी भटक गई है एनएफसी पर चली गई है उसको वापस एफसी पर लाने के लिए हम लोग मदद लेते हैं मिक्सर की. सो दिस इज अ स्मॉल स्टेटमेंट दैट यू विल रिमेंबर which is by proper mixing center frequency of the resulting wideband FM signal will be changed from NFC to FC. ये जरूरी है.